the incident that happened in the royal court in the kingdom of Pratibandpuram. A high-ranking British officer visited. He had a desire to poach tigers. He had a desire to click pictures with the dead body of tiger, and the Tiger King did not permit him to do so. So he was in the grave danger of losing his kingdom. He was in the danger of losing his kingdom. So what happened? What happened? He had deliberations with his courtier, with his minister, with his divan. उन्होंने discussion किया and they decided to impress the wife of the British officer. So that is why they ordered 50 samples of diamond ring and sent to the Durai Sani, which is the British officer's wife, and asked her to pick some. But she kept all the 50 rings with herself and sent a thank you note. That kind of bribe, that kind of bribe cost Maharaja 50 lakh, 3 lakh rupees, but still he was able to manage to retain his kingdom. Now, let's start with our fourth scene, fourth section of the chapter. The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, महाराजा had spent 10 years chasing and hunting tigers. टाइगर्स को ढूंढते थे और उनको मार गिरा देते थे. And he had killed 70 tigers in the span of 10 years. He had killed 70 tigers in the span of 10 years, which is a lot. 70 टाइगर मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है. It's a kind of a big accomplishment, kind of a big deal. So here 70 tigers are assassinated, are murdered, are killed by the Maharaja of Pratibandpuram. He did not pay attention to any other aspects of the किंगडम. उनको किसी ऑफिशियल मैटर को डिस्कस नहीं करना होता था. उनके दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट था, एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही गोल, मोटो, ऑब्जेक्टिव रहता था कि मुझे कैसे ना कैसे 100 टाइगर्स को मारना है. So he had killed those tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. Hurdle मतलब obstacle. ऑब्स्टिकल मैं लिख रहा हूं यहां पर, आई विल राइट इट डाउन. बाधा हम हिंदी में जिसको बोल सकते हैं, बाधा आ जाना. हर्डल मीन्स ऑब्स्टिकल, बैरियर्स. हम बोलते हैं हर्डल रेस होती है ओलंपिक्स में. तो हर्डल रेस का मतलब क्या होता है? बीच बीच में आपके बाधाएं होती हैं, उसको लांग के आपको दौड़ना होता है. इम्पेडिमेंट्स यू कैन से. hindrances, राइट. डिफिकल्टीज जिसको हम बोल सकते हैं, डिफिकल्टीज. ऑलराइट, सो कोई ना कोई बाधा आ गई. कौन सी बाधा है? brought his mission to a standstill. standstill मतलब without any movement. अब मिशन आगे नहीं बढ़ रहा है. there is no movement happening in the mission. 70 का डिजिट 70 पे ही अटका हुआ है. there is no further movement of the mission. ऐसा क्यों? because the tiger population became extinct in the kingdom of Pratibandpuram. टाइगर पॉपुलेशन जो थी, ऑफ कोर्स जायज सी बात है, नेचुरल सी बात है. the tiger population will go extinct in the kingdom of Pratibandpuram. 70 टाइगर्स मार दिए. अब इतने टाइगर्स एक एक किंगडम में होने लगे तो फिर बात ही क्या थी? टाइगर्स आर वेरी रेयर एनिमल. अभी भी एक्सटिंक्शन के वर्ड्स पे रहते हैं टाइगर्स. तो उस टाइम पर तो चलो टाइगर्स की पॉपुलेशन थोड़ी बहुत रही होगी, और इस तरह से पोचिंग और हंटिंग करते थे महाराजाज, तो उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने लग गई. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. Again, the author is bringing a fun aspect, a fun side of the story. क्या बोल रहा है? कौन जानता है? Who knows
whether the tigers practice birth control. क्या पता टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया हो. दे स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग, दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन. उनकी पॉपुलेशन में कमी इसलिए आ रही है क्योंकि अब उनका रिप्रोडक्शन होना बंद हो गया है. तो एक्चुअली दिस इज नॉट पॉसिबल. टाइगर्स कौन बर्थ कंट्रोल यूज करेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल. बट अगेन अ फनी साइड हैज बीन प्रेजेंटेड टू यू बाय द ऑथर. वो बोल रहा है क्या पता टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल लेना यूज कर दिया है, या दे कमिटेड हाराकिरी. हाराकिरी मतलब आपका हंगर स्ट्राइक. हंगर स्ट्राइक जिसको बोल सकते हैं, भूख हड़ताल जिसको बोल सकते हैं. डिसएम्बावलमेंट एक वर्ड आता है, डिसएम्बावलमेंट, जिसका मतलब होता है आप अपने पेट में कुछ खा नहीं रहे हो, अपने पेट में कुछ अन्न का प्रयोग नहीं कर रहे हो. दैट इज योर डिसएम्बावलमेंट. समझ में आया? समझ में आया? तो या तो हमारे शेर, हमारे बाघ, हमारे टाइगर्स बर्थ कंट्रोल पे चले गए हैं, या उन्होंने हंगर स्ट्राइक को एक्सेप्ट कर लिया है और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्ट्रेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. या तो वो प्रतिबंधपुरम से भाग गए हैं क्योंकि उनके दिमाग में क्या है कि हमें तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों से मरना है, हम टाइगर किंग के हाथ से नहीं मरेंगे, हम महाराजा के हाथ से नहीं मरेंगे. ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है. ऑफ कोर्स नहीं है. द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज 70 टाइगर्स थे प्रतिबंधपुरम में और सारे 70 टाइगर्स को टाइगर किंग ने मार दिया. टाइगर किंग ने मार दिया. So that is why the tiger population went extinct. All these reasons presented here by the author. What are the reasons that the tigers have practiced birth control? ये लॉजिकल नहीं है, रीजनेबल नहीं है. दे कमिटेड हाराकिरी. टाइगर्स कभी हंगर स्ट्राइक पर जा सकते हैं क्या? भूख हड़ताल पर जा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट. Or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone, or they escaped, they eluded, they ran away from the state of Pratibandpuram because they had this will, they had this wish, they had the desire to be shot by British hands alone. They only wanted to be shot, they only wanted to be hunted by the British officers, which is also not a reasonable explanation. यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं. अनफोर्सीन, विच वॉज नॉट सीन बिफोर, जो पहले देखा नहीं गया है, दैट इज अनफोर्सीन. अनफोर्सीन. ऑल राइट. One day, the Maharaja sent for Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. महाराजा ने अपने दीवान साहब को बुलाया, अपने मंत्री को बुलाया, मिनिस्टर को बुलाया, and he told his chief minister, दीवान साहब, aren't you aware? क्या आपको पता नहीं है? Are you not aware of this fact? Do you not know, are you not cognizant of this fact? कौन सा fact? That 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine. That अभी भी मेरे count में 30 tigers बाकी हैं. I still have 30 tigers to kill so that I can win my own death, so that I can prove the astrologers' prediction and their prophecies wrong. So tell me how I can kill the 30 tigers. So उन्होंने पूछा, and he was saying that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine. He asked, brandishing his gun. Brandishing मतलब अपने गन को वो शाइन कर रहा था, करास कर रहा था. बहुत सारे गुंडे होते हैं, बहुत सारे डॉन्स होते हैं, वो अपनी गन को बार बार चमकाते रहते हैं. दे कीप शाइनिंग, दे कीप ग्लिटरिंग देयर गन्स, दे कीप पॉलिशिंग देयर गन्स, ताकि वो अपना अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सकें, अपनी होशियारी मार सकें कि हमारे पास गन है, हमें गन चलानी आती है और हमने इस गन से बहुत सारे लोगों को मारा है. तो ही
The Tiger King, the Maharaja of Pratibandpuram, was polishing his gun, was brandishing his gun, and he asked the Diwan Sahib कि अभी ये मेरी जो चमकती हुई बंदूक है इससे अभी भी 30 टाइगर्स मरने बाकी है. The 30 tigers are shot in my list of killing tigers. तो अब इसका कुछ प्रबंध कीजिए. तो यहाँ पे बहुत ही एक ह्यूमरस स्टेट आने वाला है, बहुत कॉमेडी सीन आने वाला है. देखते हैं क्या होता है. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन. ये क्या हो गया? Shuddering at the sight of the gun. Shuddering मतलब shivering, डर के मारे कांपना. Shaking बोल सकते हैं, shaking, or you can say shivering. There's the word quivering, trembling. तो महाराजा की गन को देखकर the Diwan Sahib started shaking, he started shuddering, he started trembling at the sight of the gun. The Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. अब वो Diwan Sahib इतना बुद्धू, इतना बेवकूफ, such an idiotic, such a stupid person, such a nincompoop person he is. He thought that महाराजा अब उसको टाइगर समझ के मारने वाले हैं. Of course, it's a funny situation. It's a hilarious situation. So he said to Maharaja, he clarified Maharaja, Oh my God, Oh Majesty, Your Majesty, I am not a tiger. कि भाई मैं तो टाइगर नहीं हूं, आप मुझे क्यों बंदूक दिखा रहे हैं? ये बंदूक मेरे सामने से हटा दो, मुझे बंदूक मत दिखाइए. Your Majesty, I am not a tiger. तो महाराजा बोलते हैं, Which idiot would call you a tiger? तो महाराजा बोलते हैं कि कौन, कोई पागल ही होगा, कोई स्टूपिड ही होगा जो तुम्हें टाइगर बोलेगा. तुम्हारे अंदर का करेज जो है वो रैट के बराबर भी नहीं है, वो एक चूहे के बराबर भी नहीं है. नो वन विल कॉल यू अ टाइगर. सो ऑफ कोर्स यू आर नॉट अ टाइगर. तो फिर महाराजा को क्लैरिफाई करके वो बोलता है, नो आई एम नॉट अ टाइगर एंड आई एम नॉट अ गन. वो बोलता है तो फिर मैं ना तो टाइगर हूं ना गन हूं, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ पे मेरे बुलाने का प्रयोजन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यू कॉलिंग मी हियर? आई एम नॉट अ टाइगर, आई एम नॉट अ गन. तो महाराजा बोलते हैं कि दीवान साहेब, यू आर नीदर अ टाइगर नॉट अ गन. आई समन्ड यू हियर फॉर आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. तो अब टाइगर किंग ने बोला, महाराजा ने बोला दैट मैंने आपको यहाँ इनवाइट इसलिए किया है. I summoned you, I invited you here, I have invited you here, I have called you here because I have decided to get married. I have made this decision to tie a knot, to get married, to acquire a life partner for myself. ऐसा डिसीजन किसने लिया? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ने ले लिया. महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ने ले लिया. So I have decided to get married, ऐसा महाराजा ने बोला. तो अब दीवान साहब वापस से अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करते हुए again he is displaying his stupidity. And what is he saying? The divan begin to babble even more. You're not audible. Am I not audible? सिर्फ उदिता को ये प्रॉब्लम है या सबको ये प्रॉब्लम आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? नो प्रॉब्लम सर. ओके, ऑलराइट, यू आर ऑडिबल. ओके ओके. उदिता आपका कनेक्शन चेक कीजिए. आप उदिता आपका कनेक्शन चेक कीजिए. ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू दिस. द दीवान बिगिन टू बैबल इवन मोर. बैबल मतलब और बड़बड़ाना. बैबल बोल सकते हैं, ब्लैबर बोल सकते हैं. यू कैन से ब्लैबर, यू कैन से ब्लैबर. सर you're not audible. अब यार ये आपका इंटरनेट कनेक्शन का फॉल्ट है. I have no fault from my side. My internet connection is really fine, working fine right now. तो he began to blabber even more. और क्या हुआ उस blabbering के चक्कर में? Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, now see the stupidity of Diwan. महाराजा ने बोला that I have invited you here because I have decided to get married. I have decided to get married. और दीवान बोलता है कि महाराजा मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं. आई एम ऑलरेडी मैरिड ट्वाइस एंड इफ आई मैरी यू, अब मैं आपसे शादी करने लग गया. और फिर वो कुछ बोलता उससे पहले ही महाराजा ने उसकी बातें
काट दी. See the hilariousness of the situation, see the कॉमिक नेचर ऑफ द सिचुएशन. महाराजा किसी और डायरेक्शन में बात करने की कोशिश कर रहा है, ये दीवान किसी और डायरेक्शन में जा रहा है. इन दोनों का कोई मेल ही नहीं है. ये दीवान साहब इतने बुद्धू हैं, इतने कावर्ड हैं, इतने डरपोक हैं, फिर भी दीवान साहब को वहां महाराजा का मंत्री बना रखा है. ऐसा क्यों, ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में. इसके पीछे का रीजन हम थोड़ी देर बाद जानेंगे. तो महाराजा ने बोला, डोंट टॉक नॉनसेंस, यू आर एब्सोल्युटली रिडिकुलस. व्हाट अ स्टूपिड डिस्गस्टिंग थिंग टू से. व्हाट नॉनसेंस, व्हाट स्टूपिड थिंग यू आर सेइंग. व्हाई शुड आई मैरी यू. व्हाट आई वांट इज अ टाइगर. तो अब महाराजा बोले कि मैं तुमसे थोड़ी शादी करूंगा. आई विल नॉट मैरी यू. व्हाई शुड आई मैरी यू. व्हाट आई वांट इज टाइगर. महाराजा बोल रहे थे कि मुझे एक टाइगर की जरूरत है. तो अब टाइगर की जरूरत है, ये सेंटेंस कंप्लीट करते उससे पहले फिर दीवान बोल पड़ा, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर. आप वापस अपने डिसीजन पे गौर कीजिए. प्लीज रीथिंक योर डिसीजन टू मैरी. क्या हुआ, उसने क्या बोला, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड. आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके फोर फादर्स जो हैं, आपके प्रेडिसेसर्स जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं, उन्होंने किससे शादी की. दे वर मैरिड टू द स्वॉर्ड. राजपूतों में ऐसा होता था, राजपूतों में ऐसा होता था कि कई लोग अपनी तलवारों से शादी कर लेते थे. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सिंबलिज्म. एक्चुअल में उनकी बहुत सारी रानियां होती थी, बहुत सारी पट रानियां होती थी, क्वींस होती थी, प्रिंसेस होते थे उनके अंडर में. बट दे यूज्ड टू मैरी देयर ओन स्वॉर्ड बिकॉज ऑफ अ सिंबलिज्म, कि हमने इस तलवार से इतनी विक्ट्री हासिल की है, इतनी जीत हासिल की है, सो आई एम गोइंग टू मैरी माई स्वॉर्ड. ऑफ कोर्स दीवान ने समझाया कि आपके एंसेस्टर्स ने, आपके पूर्वजों ने, आपके प्रेडिसेसर्स ने तलवार से शादी की है. इफ यू लाइक मैरी द गन. अगर आपको इतना ही शौक है तो आपके हाथ में जो ये तलवार है, आप उससे शादी कर लीजिए. आपके हाथ में जो ये गन है, बंदूक है, आप उससे शादी कर लीजिए. अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट. इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल. एक टाइगर किंग जो आप हैं वो इनफ है. अगर आप एक टाइगर से शादी करेंगे तो इस किंगडम में टाइगर क्वीन आ जाएगी, जो कि कतई सही नहीं होगा. विच विल नॉट बी अप्रोप्रिएट एट ऑल, विच विल नॉट बी गुड फॉर द किंगडम एट ऑल. टाइगर किंग चलता है, टाइगर क्वीन विल नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया फॉर दिस किंगडम. अगेन Devan Sahib is pouring out his stupid ideas, his stupid theory in front of महाराजा. उसने बोला कि आपके पूर्वजों ने स्वॉर्ड से शादी की है, आप चाहे तो इस गन से शादी कर लीजिए, बट टाइगर से शादी करने की जरूरत नहीं है. महाराजा gave a loud crack of laughter. महाराजा ने एकदम ठहाका मार के हंसे. What he said, I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. उन्होंने, महाराजा ने अब क्लैरिफाई किया कि भाई दीवान साहब, आप क्या मजाक कर रहे हो. न तो मैं बंदूक से शादी करूंगा, न मैं किसी टाइगर से शादी करूंगा. माई मोटिव इज टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. आई वॉन्ट टू मैरी समवन जो मनुष्य हो, जो मानवता से बिलोंग करता हो, उस पर्सन से मैं शादी करूंगा. फर्स्ट यू मे ड्रॉ स्टेटिस्टिक्स in the different native states, statistics of tiger populations in the different native states. पहले आप कैलकुलेशन कीजिए, पहले आप डेटा लेकर आइए, पहले आप स्टेटिस्टिक्स लेकर आइए कि कौन से स्टेट में कितनी टाइगर पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में कितनी टाइगर की प्रेजेंस है. नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. देखो, अब अपने सेल्फिश मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए टाइगर किंग ने शादी भी उस हिसाब से करनी चाहिए. टाइगर किंग थॉट दैट मेरी किंगडम में टाइगर पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है. नाउ देयर इज नो टाइगर को टू किल और टू हंट, सो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट. ही हैड नो आइडिया. सो व्हाट ही सेड, पहले आप टाइगर पॉपुलेशन ढूंढो सारे आसपास के स्टेट में, और उन स्टेट्स में अगर कोई कन्या हो, अगर कोई अनमैरिड गर्ल हो, कोई बैचलरेट हो
जिसको मैं शादी कर सकता हूं उस लड़की का रिश्ता लेकर आओ, और आई विल मैरी, सो दैट जब मैं मेरे ससुराल जाऊं, जब मैं अपने इन लॉज के यहाँ जाऊं, आई कैन किल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ tigers. So I can marry in the royal family of a state with large tiger population. The Diwan followed his orders. So please explain from first you may. Okay. First you may draw up statistics of tiger population. Draw up statistics मतलब आप कैलकुलेट करो, आप जाके गिनती करके आओ, आप डेटा लेकर आओ। डेटा कैसे लेके आएंगे? गिन के ही तो आएंगे कि भाई भिलवाड़ा में इतने टाइगर हैं, पुर में इतने हैं, मांडल में इतने हैं, चित्तौड़ में इतने हैं, जयपुर में इतने हैं, अजमेर में इतने हैं। तो दिस इज स्टेटिस्टिक्स, ड्राइंग अप द स्टेटिस्टिक्स। आप पेपर में लिख के ये टेबल बना के लिखते हो, दैट इज ड्राइंग अप योर स्टेटिस्टिक्स। और 11th क्लास में तो शायद आपके इकोनॉमिक्स में स्टेटिस्टिक्स का सिलेबस भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा। तो उसमें आप यही निकालते हो किस कौन सी चीज कितनों को कहाँ मिली है, फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट यू ड्रॉ अप द स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। नेटिव स्टेट्स मतलब जो आसपास के स्टेट्स हैं जो हमारे यहाँ बिलोंग करते हैं। अब जैसे अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ऑल आर नेटिव स्टेट्स, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो draw up the statistics of native states, then I will marry a girl जिसके यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर का पॉपुलेशन रहेगा। The Diwan followed his orders. He found the right girls from a state which possessed a large number of tigers. The Diwan, of course, the king gave the order, the king gave the instruction, and he had to follow his king's instruction. He followed those orders and he found a girl where the tigers population were very good. उसके किंगडम में बहुत अच्छी टाइगर पॉपुलेशन थी और महाराजा ने उससे शादी कर ली। महाराजा जंग जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. Whenever he used to go at his in-laws place, जब भी अपने ससुराल में जाते थे तब तब वो 5 या 6 टाइगर्स मार के आते थे। इस तरह से उनका टोटल काउंट कितना हो जाएगा? 99. In this manner, 99 tiger skins adorned मतलब decorated, decorated, सजाना। एक और बड़ा था embellished। तो 99 tigers adorned the walls of the reception hall in Pratibandhapuram Palace. Of course, there were 99 tigers, और इन 99 टाइगर्स की स्किन जो है वो महाराजा प्रतिबंधपुरम के पैलेस में अडॉर्न कर रही थी, डेकोरेटेड थी, सजा के रख रखा था। आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। हम इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन कल पढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा हमारा व्हाट syllabus for this हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। मैं सोच रहा हूँ चैप्टर 1 हो गया है, 3 हो गया है, 4, फिर आपका पोएट्री में 1, 2, 3, फिर आपके विस्टाज में कौन सा ये ऑन द फेस ऑफ इट, ये पोएम्स आप, ये कोर्स आपका लिटरेचर में। फिर आपका अनसीन पैसेज हो जाएगा। अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग आता है। वैसे नोट मेकिंग मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको अब नेक्स्ट राउंड में पढ़ा दूंगा। तो आपको मैं 2 अनसीन पैसेजेस दे दूंगा, डोंट वरी। तो आपको काफी अच्छा स्कोरिंग मार्क्स मिल जाएगा अनसीन पैसेज में। देयर विल बी 2 अनसीन पैसेज। राइटिंग में आपका नोटिस आएगा, आर्टिकल आएगा। आपको लेटर राइटिंग करवाया है क्या? लेटर राइटिंग आता है क्या आपको? डू यू नो एनी लेटर राइटिंग? यस, विच लेटर राइटिंग? कौन सा लेटर? फॉर्मल में कौन सा लेटर आता है आप लोगों को? फॉर्मल में कौन सा लेटर आता है आप लोगों को?
लेटर टू एडिटर, ओके वेरी गुड। तो एक आपका लेटर टू एडिटर दे दूंगा, इसमें आपको चॉइस दे दूंगा, लेटर टू एडिटर में चॉइस दे दूंगा। और नहीं भी आता है मैं आपको समझा दूंगा। ये लेटर 2 दिन का काम भी नहीं है, मुश्किल से 2 दिन का काम भी नहीं है। तो लेटर हम समझ लेंगे। तो लेटर विल बी देयर, आर्टिकल विल बी देयर एंड नोटिस विल बी देयर, अनसीन पैसेज विल बी देयर, और ये आपका कोर्स हो गया फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, राइट। इसमें आपको कोई एडिशन डिलीशन कराना हो आप बोल सकते हो। एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर्स आर नॉट, सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। कौन सा एक्सप्लेन करना है, इतना सिंपल तो है यार। आपके फ्लेमिंगो में चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 4, लास्ट लेसन डीप वाटर रैट ट्रैप, फिर ये मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, और कीपिंग क्वाइट, विस्टास में ऑन द फेस ऑफ इट, ये हो गया कंप्लीट। अनसीन पैसेज 2 आ जाएंगे, नोटिस 1, लेटर 1, आर्टिकल 1। आर्टिकल सॉरी लेटर में अगर आप लोगों को नहीं आता है, मैं आपका लेटर का कोर्स करवा दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल। एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर्स आर नॉट, ये एनसीईआरटी बुक्स ही तो चैप्टर्स हैं ऋषभ सिंह। सर एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे क्या? अगर आपने अभी आपका देखा होगा, नहीं इनफॉर्मल लेटर्स आपके नहीं आते हैं महक 11th 12th में। सो प्लीज कैंसिल ऑन द फेस ऑफ इट। बच्चों कैंसिल थोड़ी होता है, ऑन द फेस ऑफ इट ऑलरेडी इतना पढ़ाया जा चुका है, आपकी लाइव क्लासेस हो गई हैं, सारी क्लासेस मैंने ईआरपी पे अपलोड भी कर दी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स की क्लास भी मैंने ईआरपी पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपको डाउट हो तो आप जाके वहां देख सकते हो। कैंसिल मैं नहीं करने वाला, फिर तो बचता ही क्या है। ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ का ऑप्शन रख रहे हैं। अगर आप चाहें तो स्कूल में आके आप अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। उसके लिए शायद आप लोगों के पेरेंट्स के लिए कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है कि वी गिव यू द परमिशन कि आप हमारे बच्चों का ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन में तो आपको खुद को घर पे लिखना है और शायद हमें कुछ भेजना रहेगा, समथिंग लाइक दैट वुड हैपन। तो वो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, डोंट वरी। प्लीज एक्सप्लेन द लेटर एक्सप्लेनेशन। अरे लेटर टू एडिटर लिखना है पीयूष, लेटर टू एडिटर। नहीं अगर आपको आता है, मैं 1 दिन की क्लास लेके आपको समझा दूंगा कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखना है। टाइगर किंग वाला चैप्टर नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम तक हो भी जाएगा तो आपको वापस से पढ़ना और क्वेश्चन आंसर्स करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए टाइगर किंग वाला चैप्टर को मैं अभी नहीं दे रहा हूं। डोंट वरी अबाउट इट, टाइगर किंग चैप्टर नहीं आएगा। ओके ये सही है, ऑनलाइन स्कूल आना मुश्किल हो जाएगा। स्कूल आना चाहो तो आ सकते हो, वो आपका पूरा इंस्ट्रक्शन सुरेश सर या संजीव सर भेज देंगे। आई डोंट हैव एनी आइडिया। ऑल वीडियोस आर ऑफ, यस ऑल द वीडियोस ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट आर अपलोडेड। जो मैंने आपको पढ़ाया है सब अपलोडेड है। एक आध लेक्चर मिसिंग होगा जो आप रिकवर कर सकते हैं पढ़ के, बाकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो कंप्लीट है। चलो बाय गाइस, अब मेरी क्षमता नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग रियली वेल। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल की क्लास मिस मत करना। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू महक।